Hello students, welcome back to my channel BST Point. So from today we are going to continue with formal organization. Formal organization is a structure which is designed by the management to achieve organizational goals amidst the responsibilities, authority, and mutual relationship among all the employees working in an enterprise are clearly defined. यानी कि वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जिससे हम अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं जहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लियरली डिफाइंड है और रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज म्यूचुअल रिलेशनशिप is also clearly defined. It can be a functional or a divisional also. ठीक है अब इसके फीचर्स की बात करते हैं. It is deliberately created by the top management and the top management get to create it is based on rules and procedures which are written in form. It is impersonal and does not take any consideration emotional aspect. Fourth one, it clearly defines the authority and responsibility of every individual. Fifth point, it is created to achieve organizational objective effectively and efficiently. इसके बाद advantages की बात करें तो पहला है easier to fix responsibility since motion relationships are clearly defined. It हम अगर एम्प्लॉयज के बीच में आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होगी तो हम क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को दे पाएंगे कि इस बंदे को ये काम करना है बी बंदे को क्या काम करना है तो ये क्लियरली डिफाइन हो जाएगा इससे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क भी नहीं होगी विल ऑल वी थिंग्स विल मूव अकॉर्डिंग टू डिफाइंड प्लान यानी कि जो भी आपका प्लान है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का वो आप क्लियरली वर्कआउट करेगा in order to succeed in the organization. इसके बाद unity of command to an established chain of command जिनकी unity of command भी रहेगा one head one boss. Easy to achieve objective because of coordination and optimum utilization of human and material resource. यानी कि हम अपने end point तक easily achieve कर पाएंगे अगर हम कोऑर्डिनेशन बाय कोऑर्डिनेट रहे क्योंकि एम्प्लॉयज में म्यूचुअल रिलेशनशिप है तो तुम्हारे ओवरलैप भी नहीं होगा तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा और आपस में वेल कोऑर्डिनेट हुए होंगे इस वजह से हम इजीली अचीव कर पाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को. फिफ्थ पॉइंट स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड यानी कि हम एम्प्लॉयज के बीच में अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप होगी तो इनका बिहेवियर हम इजिली फेयरली प्रेडिक्ट कर पाएंगे और उनको स्पेसिफिक उसी तरीके से गाइड और रूल्स से गाइड कर पाएंगे. इसके बाद also disadvantage of formal organization the work is based by rules which causes unnecessary delay क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ा था कि यहाँ पे procedures on the parameters is based on rules and procedures यानी कि जो स्टेप में है जो रूल वाइज ही हमें काम करना पड़ेगा. अगर हम रूल वाइज नहीं करेंगे तो अननेसेसरी डिले हो जाएगा रूल वाइज करने की वजह से यानी कि स्टेप बाय स्टेप लैक ऑफ इनिशिएटिव्स यानी कि एम्प्लॉयज जो होंगे उनको वही काम करना है जो उन्हें बोला जाएगा बिकॉज ऑफ द रूल सो दे आर टोल्ड टू डू दे हैव नो अपॉर्चुनिटी ऑफ थिंकिंग यानी कि वो खुद से कोई काम नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट इज लिमिटेड इन स्कोप इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप यानी कि सारी एम्प्लॉयज के हर एक एम्प्लॉयज के बीच में ऐसा नेसेसरी नहीं है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे. So it places more emphasis on structure and work. तो ये वहाँ पर structure पे ज़्यादा focus डालता है. Next topic is informal organization. An informal organization is that organization which is not established deliberately but comes into an existence because of common interest. यानी कि वो organization जो deliberate है जिसमें कोई return work में है और अगर लोग आपस में कनेक्ट में ही होना चाहते तो उनको फोर्स भी नहीं किया जाता who came into formal line of authority but it comes into an existence लेकिन इसको organization इसलिए बोला जाता है because of the common interest taste religious and common relationships in factors की वजह से इसको लाया जाता है. Features की बात करें it originated from within the formal organization as a result of personal interaction among employees यानी कि like employee A है एक employee B है इनके बीच में जो personal interaction over
other than the word. वो उस वजह से informal organization जो है that is created, ठीक है. No written rules and procedure क्योंकि हम इनको force नहीं कर सकते into formal line of authority. Do not have fixed line of communication की कोई formal line of authority नहीं है. तो communication जो scale है जिनकी थ्रू में की पहले top से middle से lower से middle से top ऐसे जाएगा. That is not deliberately created by the management. जरूरी नहीं कि हमेशा टॉप लेवल ही काम करेगा या वो करेगा. इसमें कोई कुछ भी जिसका जो मन कह रहा है वो कर सकता है. It is personal means a feeling of individuals are kept in mind. जैसे कहना आपको बोला एक A और B दोनों के बीच में जो personal interaction है other than the work is that personal. एडवांटेज के मतलब तो सबसे पहला स्पीड. इससे क्योंकि कम्युनिकेशंस फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है तो हम इससे इंफॉर्मेशन अगर ए डिपार्टमेंट से हमारे को बी डिपार्टमेंट पे पहुंचानी है तो डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं विदाउट बी और सी वो इन्वॉल्व करें. क्योंकि फॉर्मल लाइन तो है और अगर फॉर्मल लाइन होती तो हमें पहले बी को बताना पड़ता फिर सी फिर डी ऐसे जाता. Fulfillment of social needs का मतलब enhancing job satisfaction. Employees को job satisfaction मिलता है जिनसे उनको sense of belongingness in the organization है. उनके अपना फन लगता है organization में. Third point is quick solution of the problems. यानी कि जो भी problem arise हुई उसका quick solution इस form में मिल सकता है क्योंकि employees will lack of initiative माना पड़ेगा. वो इसलिए advantage बनता है formal organization में. This and the lack of incentive या initiative था वो इसमें आपका advantage बन जाएगा. इसमें subordinates can speak out what they think, what they in their mind before the officers. यानी कि उनको top level के अंदर नहीं काम करना. वो अपने points भी work out कर सकते हैं. Disadvantages के बात करते हैं कोई formal line of communication तो secrecy यहाँ पे अगर मैं secrecy की बात करूँ तो secrecy यहाँ पे मिलेगी. It resists strain and lay stress and adopting the old technique यानी कि चेंज की बात करूं एडवांस नई टेक्नोलॉजी लेने की बात करूं तो वो भी यहाँ पे नहीं है. प्रायोरिटी टू ग्रुप इन द के स्पेशलाइज मेंबर टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशन. फोर्स करने की बात करूं तो फोर्स यहाँ पे मेंबर्स को. इसके बाद बात करें डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो मीनिंग the basis level for the structure which is well defined with authority and responsibility. इसमें क्या है पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होती है that is automatically between A and B rather than अब A और B दोनों ये informal organization that arises from formal organization only. दो employees है A और B दोनों काम करें इनका बीच में जो mutual relationship है that is work से related जो भी है वो mutual relationship है. और जो other than work है that is your personal relationship and develops automatically. यानी कि nature की बात है second point is the generic यानी कि जो है वो है. इसमें top level ही है जो लेगा decision. इसमें सिर्फ इसमें employees भी employee भी decision ले सकता है. ठीक है यानी कि flexible है. Authority की बात करें तो टॉप लेवल से ही अराइजिंग होती है. इसमें पर्सनल यानी कि ए भी ले सकता है बी भी ले सकता है. नो मैटर कौन सा टॉप लेवल का है कौन सा बॉटम लेवल का. एडहेरेंस टू रूल्स यानी कि अगर रूल वॉलेट होते हैं तो पेनल्टीज और पनिशमेंट मिल जाते हैं. लेकिन इसमें क्योंकि नो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होते तो नो सच पनिशमेंट विल बी देयर. फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूँ तो इसमें कम्युनिकेशन क्या है ए है पहले फिर बी है फिर सी है. वो पहले ए को इन्फॉर्मेशन जाएगी फिर बी को जाएगी फिर सी को जाएगी. और अगर इसमें बात करें इसमें पहले ए है फिर बी है और फिर अगर सी है तो डायरेक्ट अगर ए और सी को कॉन्टैक्ट करना तो डायरेक्ट ए टू सी जाएगी. बी का अब एलिमिनेट हो जाएगा. फिर ये है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. अब बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट टू द लास्ट टॉपिक. डेलीगेशन की बात करें तो इट मींस ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट. यानी कि अब जैसे तुम स्केलर चेन में नीचे नीचे एक मिनट स्केलर चेन में जैसे तुम नीचे नीचे मूव आउट करते हो तो लेवल गिरता है यानी कि मैनेजमेंट का लेवल गिरता है. जैसे ये एक टॉरिस स्केलर चेन है तो टॉप पर जैसे तुम्हारा ए हो गया ए एम्प्लॉय
फिर दोबारा बी एम्प्लॉय आ गया, फिर दोबारा यहाँ पे सी एम्प्लॉय आ गया, फिर बी आ गया, एंड फाइनली यहाँ पे लास्ट दोबारा ई एम्प्लॉय अगर आया। तो ये अब अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो कि टॉप लेवल पर है, that has only delegation, that कि उसके पास ही सिर्फ अथॉरिटी है। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि ए अपनी पावर थोड़ी सी बी को भी देगा, फिर वो सी को भी, डी को भी और ई को भी देगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को देगा टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, यानी कि उसको लिमिटेड अथॉरिटी देगा। लिमिटेड अथॉरिटी की यहाँ पे बात चल रही है, यहाँ पे इसको लिमिटेड अथॉरिटी मिलेगी। और जो मैनेजर होगा वो डेलीगेट्स अथॉरिटी, यानी कि जो अथॉरिटी को देगा, Police is the subordinate responsible for proper performance of assigned tasks, यानी कि वो ही responsible होगा उनके काम के लिए to make sure that the subordinate perform all the works effectively and efficiently expected manner. The manager create accountability also. तो यहाँ पे ये इसने आपका डेलीगेशन दे दी, DCDE को डेलीगेशन दे दी, तो वो काम अच्छे से कर रहे हैं, effectively efficiently कर रहे हैं, तो इस वजह से accountability create कर रहे हैं। Now we understand the meaning of accountability. Before that, we understand the elements of delegation. You have three elements. First is authority. First is authority. Second is responsibility. And third is accountability. First, authority means the power of taking decision. In order to guide the activity, authority is that power which influences it. When that of authority is made the point India, periodically flows from top to बॉटम, यानी कि टॉप टू लोअर लेवल ये फ्लो होती है। और ये कैसी फ्लो कम्युनिकेशन है? डाउनवर्ड फ्लो, टॉप से लोअर है तो डाउनवर्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबऑर्डिनेट को फुलफिल करनी होती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। जब उसको कोई सुपीरियर ऑर्डर इश्यू करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबऑर्डिनेट की टू कैरी इट आउट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की लोअर से अब इसमें लोअर का मेन काम है, टॉप का काम है, तो लोअर टू टॉप ये है, यानी कि एक पॉइंट ये। और फिर ये अपवर्ड फ्लो, यहाँ पे तो डाउनवर्ड आ गया, यहाँ पे अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जब सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को काम दिया तो subordinate is accountable for that, for the performance of that work। तो यहाँ पे भी लोअर और टॉप में, लोअर के पास सबसे is accountable to top, यहाँ पे भी अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। बी तीन पॉइंट इसके याद रखना। Other delegation की importance की बात करें तो very important. It also may come in your CBSE examinations. First point is reduction and execution of workload. It reduces the workload of officers. सबसे पहले टॉप लेवल के पास वो वर्कलोड रहता है, किसे वो डेलीगेशन से तुम्हारी अथॉरिटी जो है वो एम्प्लॉय से और सबऑर्डिनेट्स में डिवाइड हो जाते, तो वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है तुम्हारा। और एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट या करें तो जो बाकी एम्प्लॉय लाइक ए और बी सी एम्प्लॉयज है, इन सब पे पास भी अब डिसीजन मेकिंग पावर होगा, तो इनका माइंड डेवलप होगा, इनके पास और अपॉर्चुनिटीज होंगी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट, allow them to develop those skills। इनसे स्किल्स बढ़ेगी और ये अपनी कॉम्प्लेक्स टास्क को भी परफॉर्म कर पाएंगे। क्विक डिसीजन एंड बेटर पॉसिबल अगर टॉप लेवल किसी दिन में ही आया। But A or B, C के पास other authority, moving of they can also take the decision. High model of subordinate, because of delegation to the subordinate, they get opportunity to display their efficiency and capacity. अगर उनके पास authority होगी तो वो अपनी efficiency, अपनी efficiency दिखा पाएंगे, अपने पावर, अपनी जो भी skills होगा उनको बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। बेटर coordination, the elements of delegation, authority, responsibility and accountability helps to define the power, duties and answerability। किसको पावर दी है, किसको क्या ड्यूटी दी है और कौन किस काम के लिए अकाउंटेबल है, यानी कि answerable है to various job performance, which led to effective coordination। Now we have a difference between the authority, responsibility, accountability, and necessarily what you need to understand that when we're writing a difference in case of CBSE mode examination, when there's a question of what
of a difference between anything. It can be anything. Then what you have to be, what is a proper procedure of doing that question? I will tell you that. Wait a minute. So what you have to do in that case, you have to first of all make myself a question case this difference between authority and responsibility. Your paper it comes where we gather what you have to do. You have to use your scale and pencil in that case. What you have to do, you have to draw a line like this. Three, you have to divide it into three columns. First column is for basis. Second column is for what you have to make. Second and third is for what you have to make the difference. When it पहला column आपका authority का होगा, दूसरा responsibility होगा, तो ऐसा तो नाम है. तो पहला basis, then authority, फिर responsibility. ये होगा उसके बाद आपको बेसिस लिखना मैंडेटरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बेसिस आप लिखोगे तो अच्छा प्रेजेंटेशन करेगा. एंड टीचर, अगर आप आंसर की में लिखोगे तो टीचर्स आर नॉट अलाउड टू गिव मार्क्स अदर देन द आंसर शीट. तो अगर उनको basis proper format में नहीं मिलेगा in Suggestion and such marking scheme, there is a proper format of doing the questions. तो इस वजह से आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़े. मीनिंग की बात करें, attractive command इसमें obligation to perform that इसमें unseverability. Origin फॉर्मल यानी कि टॉप लेवल से, इसमें लोअर लेवल से, इसमें भी लोअर लेवल से, सब हमने बात कर लिया. अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डेलीगेट अथॉरिटी टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अब उसमें क्या था कि अगर ए टॉप लेवल पर है तो वो सिर्फ देखिए सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट को ही दे सकता है, बी वो सी डी ई को नहीं दे सकता. ये बता रहा, इसमें मैंने आपको तब बताया था कि सबऑर्डिनेट से उसके लिए सारा है, लेकिन टू ऑल. लेकिन अब डी अपने सी को भी देगा, डी को भी देगा, या तो सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के पास जो है अथॉरिटी जाएगी. तो इससे डिसेंट्रलाइजेशन जो है absolutely necessary for the superior to will be given the subordinates for management. In chapter number 2, principles of management, you also learn the pure principle, delegation and decentralization. उससे लिंक करके लिखना थोड़ा यहाँ पे. Centralization और decentralization यहाँ पे पूरी बात करें. Centralization का मतलब authority in few hands, whereas decentralization का मतलब authority at all levels. ठीक है. No country, no organization can be completely centralized or decentralized. And you spoke the kind centralized university, decentralized university. You need to get a balance between of them. There is a tendency to move toward the centralization, because organizers characterized by both of them. इसके बाद importance of centralization के बाद सबसे पहले develop initiative among subordinate. It helps to promote confidence. Confidence बढ़ता है subordinate के बीच में, उनको freedom मिलती है कि वो अपना decision खुद ले सकते हैं. Second one is quick and better decision. The burden of managerial decision not lie on your few individuals, and it is a decision making top levels के पास नहीं है. It is among all the levels to take better and quick decision. Third point is related to टॉप एग्जीक्यूटिव्स और एक्सेस वर्कलोड जाने की जो टॉप लेवल है, जिसके पास एक्सेस जिसके पास वर्कलोड सबसे ज्यादा होगा, उससे अथॉरिटी लेकर हम वर्कलोड को भी कम कर सकता है. मैनेजरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट मीन गिवन अथॉरिटी टू बी सबऑर्डिनेट अप टू द लोअर लेवल टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर lower level भी अपना वर्क अपने आप कर पाए, अपना decisions लेता है. In this way, the opportunity to take decisions helps in development of the organization. इससे तुम्हारी organization जो है वो growth. Fifth point is better control, यानी कि अगर इससे हम employees की performance पर evaluate कर पाएंगे at each level, जिससे complete control रहेगा उनकी activities पे. Difference की बात करें, so this difference is completely same, because delegation or decentralization is some point similar. इसके advantages क्या है, तो वो भी कुछ teachers तो बोलते हैं कि delegation के ही advantage कराते,
Centralization का मतलब समझा के कह देते हैं कि बस इतना ही है decentralization और delegation the advantages are one only same. एक हद तक सही है बट मैंने आपको फिर भी एक बार इससे इम्पोर्टेंस करवा दी है in order to get proper understanding about the topic. Yeah, then we had that all for today. This is all for today. In next part will be the question answers mark wise of this chapter number 5 organized entire topic. As our target is to complete book 1 till 10 of September, and after that we will be stop for doing the syllabus continue. Book 2 we will doing after half yearly because we will be practicing the book 1 completely and everything. MCQs, video, long question answer, short question answer, everything in that. So that's all for today. Then the takeover. Hey!